মানস গেহ কিছু মোর অর্পিল তুয়া পদে নন্দ কিশোর মানস দেহ গেহ কিছু মোর অর্পিল তুয়া পদে নন্দ কিশোর সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে সম্পদে বিপদে জীবনে মরণে দায় মম গেলা তোয়া ও পদ বরণে মার বিরাট কবি জয়ী তোহার নিত্য দাস প্রতি তোয়ায় অধিকার মানুষ দেহ গেহ কিছু মোর অর্পিল তোয়া পদে নন্দ কিশোর জন্মাবিময় ইচ্ছা যদি তোর ভকত গৃহে জনি জন্ম মোর জন্মাবিময় ইচ্ছা যদি তোর ভকত গৃহে জনি জন্ম মোর কীট জনম যথা তুয়া দাস বহির্মুখ ব্রহ্ম জন্মে নাহিয়াস মানস দেহ গেহ কিছু মোর অর্পিল তোয়া পদে নন্দ কিশোর ভক্তি মুক্তি স্পৃহা বিহীন জীব কত লভকে তক সঙ্গ অনুরক্ত জনক জননী দয়িত তনু প্রভু গুরুপতি তুহু সর্বময় ভকতি বিনোদ কহে শুনক রাধানাথ তুহু আমার পরাণ ভকতি বিনোদ কহে শুনক রাধানাথ তুহু আমার পরাণ মানস দেহ গেহ কিছু মোর অর্পিল তোয়া পদে নন্দ কিশোর হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম হরে রাম রাম রাম
हरे। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। Thank you very much. Hare Krishna. Om Jnanatimirandasya Gyananjanashalakya Chakshurunmanitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Yena Bhutare Sayam Rupa Karamaya Vedati Swaparantam Vandeyaham Shri Guru Shri Yuta Paragamalam Shri Gurun Vaishnavamsta Shri Rupam Sagrijatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sadi Sadvaitam Savadvatam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Raghunatam Shri Sakanvita He Krishna Karuna Sindhu Dinabandho Jagapate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Mustade Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Rishabhanu Sute Devi Pranam Hare Hare Pancha Kapataribhyascha Kripa Sindhubhya Ekvacha Patitanam Bhavanebhyo Vaishnavebhyo Namo 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 Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutare Srimati Bhaktivedanta Swamini Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pastapatya Deshatayame Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Srivas Bhaktivinoda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Okay, so today we're starting on chapter 11 of Bhakti Rasamrita Sindhu. आज हम भक्ति रसामृत सिंधु के 11वें अध्याय से प्रारंभ करेंगे। So we should read just one section at a time, and then I've got some notes from my PowerPoint which I can't show you, but I can read to you. So somebody can read the first section, which is on Sarvatasha. तो यहाँ पे अलग अलग भाग हैं, तो माता जी बता रहे हैं कि हम एक एक करके एक एक भाग पढ़ेंगे और उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो पहला है दास्य भाव। कोई भाग पढ़ेंगे इसको? हरे कृष्ण माता जी। दंडवत प्रणाम। Hare Krishna. मैं पढ़ूं माता जी? हाँ जी माता जी, हाँ जी। प्रभुपाद जी की जय। दिव्य सेवा के विविध रूप। अध्याय 11 दास्य भाव। कर्मियों के अनुसार कर्म के फलों को अर्पित करना दास्य भाव या सेवकाई है, किंतु शील रूप गोस्वामी जैसे वैष्णव आचार्यों के अनुसार भगवान के किसी न किसी सेवा में निरंतर संलग्न रहना भाव या सेवकाई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो लोग अनुष्ठानों, चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों में लिप्त रहते हैं वह भक्त माने जाते हैं, किंतु जब भक्तगण भगवान की प्रत्यक्ष सेवा में लगे होते हैं तो वह भागवत या शुद्ध भक्त होने चाहिए। जो लोग चारों वर्णों तथा चारों आश्रमों द्वारा सकाम कर्मों अथवा नियत कर्मों में संलग्न रहते हैं वे वास्तविक शुद्ध भक्त नहीं होते। तो भी चूंकि वे भगवान को कर्मों का फल अर्पित करते हैं अतएव उन्हें भक्त माना जाता है, किंतु जब किसी को ऐसी इच्छा नहीं होती कि वह भगवत प्रेम के कारण रागानुराग होकर कर्म करता है तो ऐसे व्यक्ति को शुद्ध भक्त माना जाना चाहिए। जो बद्ध जीव भौतिक जगत के संसर्ग में आ चुके हैं वे प्रकृति पर न्यूनाधिक प्रभुत्व जताने के लिए ललायित रहते हैं। वर्णाश्रम प्रथा तथा इस प्रथा के अंतर्गत
नियत कर्तव्य इस प्रकार नियोजित किए गए हैं कि बद्ध जीव इंद्रिय तृप्ति हेतु अपनी अपनी इच्छाओं के अनुसार भौतिक जगत का भोग कर सके और साथ ही क्रमशः आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करें। वर्ण आश्रम के अंतर्गत इन नियत कर्तव्यों में से कई कार्य कृष्ण भावना में भक्ति से संबंधित होते हैं। जो भक्तगण गृहस्थ होते हैं वे वैदिक कर्म कांडों के साथ साथ भक्ति के नियत कार्यों को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि दोनों ही कृष्ण को तुष्ट करने के निमित्त होते हैं। जब गृहस्थ भक्तगण कोई वैदिक अनुष्ठान करते हैं तो वे कृष्ण को तुष्ट करने के उद्देश्य से ही करते हैं। जैसे कि हम पहले कह चुके हैं, भगवान को तुष्ट करने के उद्देश्य से किया गया कोई भी कर्म भक्ति माना जाता है। पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी आश्वासन प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक माता जी, सिद्धि भी प्राप्त माता हो जी, सकती है। आपने ना पेज स्किप कर दिया माता जी आपने। Oh, There's sorry, a little Mataji. bit of this. There's a little bit of this paragraph still to go now. सॉरी माताजी। श्री रूप गोस्वामी यहाँ उस व्यक्ति का वर्णन करते हैं जो भक्ति में संलग्न रहने के लिए उपयुक्त है। वे कहते हैं कि जो नव दीक्षित है और जिन्होंने थोड़ा भी भगवत प्रेम विकसित कर लिया है, वे अपनी भक्ति के अनुपात में इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में रुचि नहीं रखते, किंतु फिर भी यदि इंद्रिय तुष्टि करने वाले कार्यों में किंचित भी रुचि होती है तो ऐसे कर्मों के फल को कृष्ण को अर्पित करना चाहिए। इसे भी भगवान की सेवा में संलग्न रहना कहा जाता है, जिसमें भगवान स्वामी स्वरूप होते हैं और कर्म करने वाला दास रूप में। नारदीय पुराण में बताया गया है कि यह दास्य भाव किस तरह दिव्य होता है। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति मनसा वचना कर्मणा निरंतर भक्ति में लगा रहता है, अथवा ऐसे व्यक्ति जो भक्ति में लगा नहीं रहता किंतु निरंतर उसकी कामना करता है, वह मुक्त समझा जाता है। Okay. Thank आगे you. कंटिन्यू करूं माता जी? No, just after a little while. So this chapter has items माता जी, 47 to 53 of the 64 angas. हरि बोल। Right? Hare Krishna. So, Hare Krishna Mataji, voice is not clear. okay, I'm on mobile data. It's going to happen. माता जी, voice is breaking. I can't hear you properly. How would I translate? Okay. What to do? My Wi-Fi is still off. And I'm on Airtel, and that's the best of my 3. Let's see. I don't know what to do. If I go outside, can you hear me? Yes, Mataji, we can give a try. You can switch off your video and speak. I think that will give a better voice. If you Yeah. switch off your If video and speak. yeah, because if I go out where the network is a little bit better, then I can't take all this stuff with me because I've got my computer with Yes. the PowerPoint and I've got the iPad with yeah. Okay, we'll try switching off the video and see what happens. Okay, so Srila Prabhupada has described different levels of servitorship according to the devotee's purity. तो यहाँ पे श्रील प्रभुपाद ने अलग अलग प्रकार के दास्य भाव समझाए हैं भक्तों के स्तर के तरीके से। So in the very first paragraph, Prabhupada says that those who are interested in
fruit in the results of their activities, they offer some results and they call that servitorship. But Rupa Goswami says servitorship means engagement in some kind of service to the Lord. तो इसमें बता रहे प्रभुपाद ने बताया कि जो लोग कुछ भक्त होते हैं जो फल से आसक्त होते हैं तो अपने कर्म फलों में से कुछ भगवान को अर्पित करते हैं, लेकिन रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि दास्य भाव का मतलब है कि हम भगवान के लिए कुछ करें। So actually, if one is not interested in pleasing the Lord, but offers some results of their activities, then that is doing it for one's own benefit. It's called karma yoga, not bhakti. तो इसलिए माता जी बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति कोई कार्य भगवान की प्रसन्नता की जगह अपने लिए करता है और उसमें से उसके फल में से कुछ भगवान को अर्पित करता है, तो उसे कर्म योग बोला गया है, ना कि भक्ति योग। So in the next paragraph, the Skanda Puran is saying that those who engage in a varna and ashram are to be considered devotees. तो उसके अगले भाग में बता रहे पद्म पुराण में बताया गया जो भक्त वर्ण और आश्रम में संयुक्त हो रहे हैं उनको भक्त बताया गया है, But they're not pure devotees. लेकिन वह शुद्ध भक्त नहीं है। But at least they are offering some result of their activities to the Lord. So gradually, they will become purified. पर क्योंकि वो अपनी सारी गतिविधियों का जो फल है वो भगवान को अर्पित कर रहे हैं, तो धीरे धीरे वह भी शुद्ध हो जाएंगे। Because that's how the system of Varnashram is been designed, so that a living entity can enjoy what they want, but at the same time gradually become elevated. तो क्योंकि इसी प्रकार से जो वर्ण और आश्रम का चीज है वो बनाई गई है कि जो भक्त है वो साथ साथ अपने कार्य भी करे और भगवान को उनको अर्पित करके और धीरे धीरे शुद्ध हो जाए। But for pure devotional service, one should be interested in pleasing Krishna. लेकिन शुद्ध भक्ति में एक भक्त को सिर्फ इसी चीज में रुचि होनी चाहिए कि वह कृष्ण को प्रसन्न कर सके। But still in the beginning, we may be interested in pleasing Krishna, but we may still be attached to various things for our own sense gratification. So this is a gradual process on the way to pure bhakti. तो शुरुआत में ऐसा हो सकता है कि हम सारे कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हो, लेकिन कहीं ना कहीं उसमें हमारा स्वार्थ भी जुड़ा हो, लेकिन ठीक है क्योंकि यही एक रास्ता है जिससे चल के जाना होता है शुद्ध भक्ति के लिए। As long as we should be offering the results of those activities to Krishna. और बस यही एक रास्ता है, जब तक हम भगवान को अपने भगवान के लिए कर्म कर रहे हैं तब तक ये ठीक है। The very last paragraph, it said, as long as one's mind can be engaged in devotional service or simply desiring to be engaged, one is considered to be liberated. तो इसके में बता रहे हैं कि जब तक एक भक्त का जो मन है वो भक्ति में लगा हुआ है या वो लगाने की कोशिश कर रहा है तो वह मुक्त माना जाता है। Okay, so now we can continue and read the section on friendship. तो अगला पढ़ सकते हैं अब हम सख्य भक्ति। रीना मेहता माता जी। श्रील प्रभुपाद की जय। सख्य भक्ति दो प्रकार की हो सकती है। पहली वह जिसमें भगवान के विश्वास पात्र दास की तरह कर्म किया जाए, और दूसरी वह जिसमें भगवान के शुभ चिंतक के रूप में कर्म किया जाए। जिस भक्त को भगवत भक्ति में विश्वास होता है, विधि विधानों का ढंग से पालन इस श्रद्धा के साथ करता है कि उसे दिव्य जीवन का पद प्राप्त हो जाए। दूसरे प्रकार की सख्य भक्ति भगवान का शुभ चिंतक बनना है। भगवत गीता में कहा गया है कि भगवान उपदेश देने वालों को अपना सर्वाधिक प्रिय दास मानते हैं। जो भी व्यक्ति गीता के रहस्य का उपदेश सामान्य जनों को देता है, वह कृष्ण को इतना प्रिय होता है कि मानव समाज में उसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। महाभारत में द्रौपदी कहती है, हे गोविंद, आपकी प्रतिज्ञा है कि आपका भक्त कभी विनष्ट नहीं होता। मैं इस कथन में विश्वास करती हूँ। अतएव सभी प्रकार के कष्टों में मैं केवल आपके इस वचन का स्मरण करती हूँ और जीवन धारण किए रखती हूँ।
तात्पर्य ये कि द्रौपदी तथा उसके पांचों पतियों को उनके चचेरे भाई दुर्योधन तथा अन्य लोगों ने घोर कष्ट दिया था। ये कष्ट इतने कठोर थे कि आजीवन ब्रह्मचारी तथा परम योद्धा भीष्म तक उन कष्टों का स्मरण करके कभी कभी अश्रु बहाने लगते थे। उन्हें सदैव आश्चर्य होता था कि यद्यपि पांचों पांडव धर्मात्मा हैं तथा द्रौपदी साक्षात लक्ष्मी है, और यद्यपि कृष्ण उनके मित्र हैं, तो भी उन्हें इतने घोर कष्ट सहने पड़ रहे हैं। यद्यपि उनके कष्ट सामान्य नहीं थे, तथापि द्रौपदी हतोत्साहित नहीं हुई। वह जानती थी कि चूंकि कृष्ण उनके मित्र है, अतएव अंततः वह उनकी रक्षा करेंगे। ऐसा ही कथन श्रीमद् भागवत में 11.2.53 में पाया जाता है, जिसमें हवि ऋषभ राज के पुत्र महाराज निमि को संबोधित करते हैं। हे राजन, जो व्यक्ति परम पुरुष के चरण कमलों की सेवा से एक क्षण के लिए भी विमुख नहीं होता, ऐसी सेवा जिसके लिए इंद्र जैसे बड़े बड़े देवता लालायित रहते हैं, और जिसका दृढ़ विश्वास रहता है कि इससे बढ़कर दूसरा पूज्य या वांछनीय कुछ नहीं है, वह प्रथम श्रेणी का भक्त कहलाता है। शील रूप गोस्वामी कहते हैं, जिस नवदीक्षित भक्त ने भगवान के लिए थोड़ा सा भी प्रेम विकसित कर लिया है, वह निश्चित रूप से भक्ति का अधिकारी हो सकता है। जब वह ऐसी भक्ति में दृढ़ता से स्थित हो जाता है, तो ये आश्वस्त स्थिति उसकी भक्ति का गुहे अंग बन जाती है। कभी कभी ये पाया जाता है कि शुद्ध भक्त भगवान का विश्वास भाजन मित्र बनकर सेवा करने के लिए निमित्त भगवान के मंदिर में लेट जाता है। भक्त के ऐसे मैत्रीपूर्ण आचरण को रागानुगा नुगा के रूप में स्वीकार किया जा सकता है। यद्यपि नियम अनुसार भगवान के मंदिर में कोई लेट नहीं सकता, फिर भी भगवान का ये रागानुगा प्रेम सख्य भक्ति के अंतर्गत आता है। हरे कृष्ण। Thank you. Okay. So this friendship is not the same friendship as in the five rasas. This is not being a friend of Krishna in Goloka Vrindavan. तो जिस मित्रता की यहाँ पे बात करी जा रही है, ये उस मित्रता की बात नहीं है जो 5 मुख्य रसों में से आता है कि भगवान का गोलोक में मित्र होना, ये अलग है। So this is described as friendship as part of sadhana bhakti. तो ये बताया गया है कि मित्रता भगवान से साधना भक्ति के मतलब साधना भक्ति का भाग कैसे है। So Prabhupada Rupa Goswami is describing 2 types as in this sadhana bhakti friendship. The first type is having faith in the Lord as our friend and protector. तो रूप गोस्वामी यहाँ पे 2 प्रकार की मित्रता बता रहे हैं। पहली, भगवान से ऐसी मित्रता जो ये समझाती है हमें कि भगवान हमारे रक्षक हैं और हमें हमेशा बचाएंगे। So this in Sanskrit is called Vishwas, having faith. जैसे ही इसको बोला जाता है कि विश्वास होना भगवान पे। And the second type is called mitra, it's called friend. Is where we try and please Krishna by doing things that will make him happy. No? और दूसरे प्रकार की मित्रता है जो हम भगवान के लिए कुछ करते हैं, जो ऐसे कार्य करते हैं जो भगवान को प्रसन्नता देते हैं। And Prabhupada gives the example that in the Bhagavad Gita, Krishna says that one who is a preacher is his most dear servant. Your voice just broke. Can you please repeat? So Prabhupada gives the example that in the Bhagavad Gita, Krishna says his most dearest servant is one who preaches Krishna consciousness. तो प्रभुपाद बता रहे हैं कि भगवद गीता में भगवान ने बताया है, और सॉरी भागवतम में भगवान ने बताया है कि उनका सबसे प्रिय मित्र वो है जो कृष्ण भावनामृत का प्रचार करता है। Okay, and the next paragraph gives the example of Draupadi. So Draupadi is listed in the Shastras as one of Krishna's friends. तो अगला उदाहरण है जो द्रौपदी का दिया गया है, और जो द्रौपदी हैं वो शास्त्रों में भगवान की मित्र बताई गई हैं। So this is an example of this first type, this Vishwas, because even though so many problems happened to her and her husband, she still had firm faith
that she was rightly situated and Krishna was their friend. इसके अंदर बता रहे हैं, पहली प्रकार की मित्रता जो भगवान पे विश्वास करवाती है, उसका उदाहरण है द्रौपदी का, कि द्रौपदी के साथ और उसके पतियों के साथ कितना कुछ हुआ, लेकिन वो फिर भी हमेशा स्थिर थी, क्योंकि उसे ये विश्वास था कि भगवान उसकी स्वयं रक्षा कर रहे हैं। So Irmala is talking about this word Vishwas. She says that there are different shades of meaning for it, and I don't really understand what she's saying. She's saying that this Vishwas, the first like this type of faith that Draupadi has, is the practice for bringing out a result of Shraddha, and is also the result of Shraddha. So the result of Shraddha is this type of Vishwas, which is very technical because they both need faith. तो माता जी बता रहे हैं कि उर्मिला माता जी श्रील प्रभुपाद के शिष्य, वो इस विश्वास के बारे में बता रहे हैं कि ये जो विश्वास है, ये श्रद्धा का फल है। श्रद्धा से जब हम भगवान के ऊपर दृढ़ श्रद्धा करते हैं, तो उससे इस प्रकार का विश्वास उत्पन्न होता है। Okay. Summary of Vishwas. Okay. So Draupadi's prayer is one of the prayers we read in prayers for forgiveness. O Govinda, remembering again and again your promise that your devotee will never perish, I maintain my life. तो द्रौपदी की जो प्रार्थना है, इस प्रार्थना को हम बार-बार दोहराते हैं कि हे कृष्ण, मेरे को बार-बार आपका ये वचन याद आता है कि आपके भक्त का कभी नाश नहीं होता। This is from the Mahabharata. और ये महाभारत में से है, द्रौपदी की प्रार्थना। And she continues, in all kinds of tribulations, I simply remember your promise and therefore I maintain my life. और फिर साथ में कहते हैं कि ऐसा मैं आपके हमेशा इस वचन को याद करती हूँ और अपना जीवन चलाती हूँ। So the summary of this type of Vishwas is that the Lord is my benefactor and friend, my only shelter. तो इसके अंदर इसका निष्कर्ष ये है कि भगवान मेरे एकमात्र रक्षक हैं और एकमात्र आश्रय हैं। From him only I get maintenance and protection. और सिर्फ उन्हीं से जो है मुझे रक्षा मिल सकती है। And I will not give up his shelter for any material opulence. और मैं कभी भी उनका आश्रय किसी भी भौतिक उपलब्धि के लिए नहीं छोड़ूंगी। And it's also mentioned that we become firmly fixed in devotional service and continue to follow the rules and regulations of sadhana bhakti. और फिर ये प्रार्थना भी है कि हम भक्ति में स्थित हो जाएं और साधना भक्ति के जितने भी नियम हैं उनका पालन कर सकें। So then the second type is to become a well-wisher of the Supreme Personality of Godhead, which is called here Mitra. Which Mitra? Well, it's called Mitra, but in other places, well-wisher is Sufrid. So these words are kind of applied a little differently in some places. But it's to become a well-wisher of the Supreme Personality of Godhead, the second type of friendship. तो जो दूसरे प्रकार की मित्रता है, उसमें बताया गया है कि भगवान का शुभ चिंतक बनना। And yeah, we mentioned that one who is preaching the message of the Gita is Krishna's friend. और इस पे बताया गया है कि जो भगवान के नाम का प्रचार कर रहा है, वो कृष्ण का मित्र है। And I'm not quite sure why
Rupa Goswami and Srila Prabhupada mention someone sometimes lying down in the temple. But this can also be devotional service and friendship if it's spontaneous and not done out of offenses. But it's not very relevant for us. Summary of Mitra. Okay. I am the well-wisher of the Lord. I want to help others and relieve their distress. Can you please repeat? Okay, so this is a summary of this Mitra. Okay. I am a well-wisher of the Lord. तो इस मित्रता का जो सख्य भक्ति है, इसका निष्कर्ष ये है कि मैं भगवान का शुभ चिंतक हूँ। So I want to please him, so I want to help others and relieve their distress. और क्योंकि मैं उनको प्रसन्न करना चाहता हूँ, इसलिए मैं दूसरों की मदद करना चाहता हूँ ताकि वो अपने तनाव से मुक्त हो सकें। So I show my friendship by teaching others about him. और फिर मैं अपनी मित्रता कैसे दिखाता हूँ भगवान के प्रति कि मैं दूसरों को भगवान के बारे में प्रचार करता हूँ। I want to relieve the Lord of any inconvenience out of friendship. और मैं भगवान को अपनी मित्रता के द्वारा किसी भी तकलीफ से बचाना चाहता हूँ। And in friendship, it's also appropriate to feel an intimate and informal relationship. Friendship is also It's not offensive to have an informal relationship like this lying down in front of the deity. तो ये जो है ये एक अनौपचारिक व्यवहार नहीं है, ये एक भाव है। और जैसे कि भगवान के सामने लेट जाना, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, पर वो अपराध करने की दृष्टि से नहीं होना चाहिए। So now we can go on and read this surrender, Atmanivedanam. हरे कृष्णा माता जी, धन्यवाद, प्रणाम। Hare हरे Krishna. कृष्णा माता जी, लास्ट पैराग्राफ को प्लीज एक बार फिर से थोड़ा एक्सप्लेन कर देंगे, ये नहीं समझ आ रहा। जो भगवान के सामने मंदिर में लेट जाना, इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए प्लीज। Well, this is being described as a type of spontaneous exhibition of friendship. But I don't really know why it needs to be there for us, because we're not to be encouraged to do this, because it's an offense in deity worship to lie in front of the Lord. तो माता जी बता रहे हैं कि ये एक प्रकार से एक कहते कि एकदम से प्रकट होने वाला भाव और भाव के अंदर करे जाने वाली ये चीज है जो कि मित्रता दिखाता है कि भगवान के सामने हम लेट गए। लेकिन हमारे अर्च विग्रह की चीजों में बताया जाता है कि ये एक अपराध है, हमें भगवान के सामने नहीं लेटना चाहिए। और माता जी कह रहे मुझे नहीं पता ये यहाँ पे इस चीज को क्यों लिखा है और इसका क्या मतलब है यहाँ पे इस्तेमाल। Yeah, because it's talking about Raganuga Bhakti, which we are considering ourselves on the stage of Vaidhi Sadhana Bhakti, because we're not at the stage of Raganuga Bhakti. और क्योंकि हम वैदिक साधना भक्ति के स्तर पे हैं और ये तो रागानुगा भक्ति की बात हो रही है। So if we come to that, if we see someone lying down and they're at the stage of Raganuga Bhakti, we don't take offense. तो अगर हम किसी को देखें ऐसे लेटा हुआ तो हम ये समझ लें वो रागानुगा भक्ति के स्तर पे है, अपराध लेने की जरूरत नहीं है। Yeah, for us, we should just take it that we shouldn't criticize other people too much. हमें तो बस यही समझ लेना चाहिए कि हमें दूसरों के बारे में कुछ भी नहीं बोलना। Is that okay? Because I can't do much more than that. माता जी कह रही है क्या ये ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा मैं नहीं समझा सकती। थैंक यू हरे कृष्णा। Okay, now we can read that Atmanivedanam. भगवान को सर्वस्व अर्पित करना, आत्मनिवेदन। कृष्ण माता जी, मैं पढ़ूं? ठीक है। हरे कृष्णा।
श्रील प्रभुपाद की जय। Okay, go ahead. Okay. श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान को सर्वस्व अर्पित करना आत्मनिवेदन। पूर्ण आत्मनिवेदन के विषय में श्रीमद् भागवतम में एक सुंदर वर्णन मिलता है, जिसमें भगवान कहते हैं, जो पूर्णतः मेरे शरणागत हो चुका है और जिसने अन्य सारे कार्यों को पूरी तरह छोड़ दिया है, उसे इस जन्म में तथा अगले जन्म में मेरे द्वारा व्यक्तिगत रूप से सुरक्षा प्रदान किया जाता है। दूसरे शब्दों में, मैं आध्यात्मिक जीवन में अधिक अग्रसर होने में उसकी सहायता करना चाहता हूँ। ऐसा समझ लेना चाहिए कि ऐसे व्यक्ति को पहले ही शास्त्री प्राप्त हो चुका है। भगवत गीता में इसकी भी पुष्टि हुई है कि ज्यों ही कोई व्यक्ति कृष्ण का शरणागत बन जाता है, त्यों ही कृष्ण उसका उत्तरदायित्व अपने ऊपर लेकर उसे सारे पाप फलों से रक्षा करने की गारंटी प्रदान करते हैं। वे भीतर से आदेश भी देते हैं, जिससे भक्त को शीघ्र ही आध्यात्मिक सिद्धि भी प्राप्त हो सके। यह आत्मसमर्पण आत्मनिवेदन कहलाता है। आत्मा की परिभाषा विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न रूप में की है। कभी कभी आत्मा को आत्मा भी कहा जाता है, तो कभी मन या शरीर कहा जाता है। अतः पूर्ण आत्मसमर्पण का अर्थ है न केवल आत्मा के रूप में आत्मसमर्पण, अपितु भगवान की सेवा में अपना मन तथा शरीर भी अर्पित कर देना। इस प्रसंग में श्री भक्ति विनोद ठाकुर का एक सुंदर गीत है। उन्होंने आत्मनिवेदन करते हुए कहा है, हे प्रभु, यह मेरा मन, मेरा घर बार, मेरा शरीर, मेरा सर्वस्व आपकी सेवा में अर्पित है। अब आप इसके साथ जैसा चाहें करें। आप हर वस्तु के परम स्वामी हैं, अतएव आप चाहे मुझे मारें या सर्वनाशन प्रदान करें, आपको सारा अधिकार प्राप्त है। मेरे पास अपना कहने के लिए कुछ नहीं है। श्री यमुनाचार्य ने भगवान की स्तुति करते हुए इसी प्रकार के भाव निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किए हैं। हे प्रभु, मैं किसी शरीर के भीतर मनुष्य या देवता जिस रूप में भी रहूं और जिस भी गुण से युक्त रहूं, इसकी मुझे परवाह नहीं है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति के 3 गुणों के अनुशांशिक सांगिक फल हैं और इन शरीरों का स्वामी मैं स्वयं को आपको समर्पित कर रहा हूँ। हरि भक्ति विवेक में शरीर के समर्पण के विषय में एक कथन आया है। भक्त कहता है, हे प्रभु, जिस प्रकार कोई बिका हुआ पशु अपने पालन तथा निर्वाह के विषय में कुछ नहीं सोचता, उसी प्रकार चूंकि मैंने अपना शरीर तथा आत्मा आपको समर्पित कर दिया है, अतः अब मुझे अपने भरण पालन की कोई चिंता नहीं है। दूसरे शब्दों में, मनुष्य को अपनी निजी या परिवार के भरण पोषण के विषय में चिंता नहीं करना चाहिए। यदि कोई शरीर तथा आत्मा के वास्तविक रूप में समर्पित है, तो उसे सदैव याद रखना होगा कि उसकी एकमात्र चिंता भगवान की सेवा में लगे रहना है। शील रूप को स्वामी कहते हैं कि सख्य भक्ति एवं आत्मनिवेदन 2 कठिन विधियां हैं, अतएव भगवान के साथ ऐसे संबंध विरले ही देखे जाते हैं। केवल सिद्ध भक्त ही उन दोनों विधियों को सरलता से निभा सकता है। तात्पर्य यह है कि निष्ठावान भावमयी भक्ति से मिश्रित समर्पण देख पाना दुर्लभ है। मनुष्य को अपने आप को पूरी तरह भगवान की इच्छा पर छोड़ देना चाहिए। हरे कृष्णा। Thank you. So the song that Manasi Ganga sang was this one that Prabhupada is writing about from Bhakti Vinod Thakur. Manasa Geho, Deho Geho, Yokichu Mor. Whatever I have, my mind, body, family, whatever is mine, I surrender at your lotus feet. माता जी बता रहे हैं कि जो भजन आज मानसी गंगा माता जी ने कक्षा के प्रारंभ में गाया था भक्ति विनोद ठाकुर के द्वारा, मानस देहो गेहो, तो उसमें यही उसी के बारे में श्रीला प्रभुपाद भी यहाँ पे बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि भक्ति विनोद ठाकुर कह रहे हैं कि जो भी मेरे पास मन है, शरीर है, परिवार है, ये सब मैं आपको अर्पित करता हूँ। So in the second paragraph, it's being explained how this word Atma in Atma Nivedanam can refer to the soul, it can refer to the mind, and it can refer to the body. कृष्ण में बता रहे हैं कि आत्मनिवेदन कैसे मन को, शरीर को और आत्मा को दर्शाता है। So therefore, this Atma Nivedana means surrendering everything, like Bhakti Vinod has sung. आत्मनिवेदन का मतलब है कि सब कुछ शरणागत कर देना, जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर के भजन में बताया गया है। And the example of an animal is appropriate animal, except we can't really put ourselves into the position, mentally into position of an animal. But an animal
doesn't think about where his next food is coming from, because this is all arranged by the owner. तो यहाँ पे जो उदाहरण दिया गया है एक पशु का, एक जानवर का, कि वो किस प्रकार से उसको खाने की चिंता नहीं होती है कि अब अगला खाना मुझे मिलेगा नहीं मिलेगा, उसे पता है कि जो उसके मालिक हैं वही उसको देंगे। तो ऐसे ही हमें भी सोचना चाहिए। And the Lord reciprocates. और फिर जब हम ऐसा सोचते हैं तो भगवान पलट के वैसे ही व्यवहार भी करते हैं। So it's described that when one is offered his bodies and activities for the pleasure of the Lord, then the Lord says, I want to make him special. I want to make him free from death. तो जब कोई अपना मन शरीर भगवान को अर्पित करता है तो भगवान भी सोचते हैं कि मैं इसके साथ कुछ खास करूं और इसको इस शरीर से मुक्ति दिलाऊं। And this means he's actually attaining liberation. इसका मतलब ये है कि वास्तविकता में वो व्यक्ति जो है मुक्ति को प्राप्त कर रहा है। At minimum, Sarup and Sarshti, which is the form like the Lord's, and the Shashti means the opulences of the Lord's. So that's the minimum he will attain. तो ऐसा करने से स्वरूप और शास्त्रीय मुक्ति मिलती है, मतलब भगवान के जैसा स्वरूप और उनके जैसे गुण। And that this Atmanivedanam is very rare because it's not so easy to do. और ये जो आत्मनिवेदनम है ये बहुत कम पाया जाता है क्योंकि ये करना आसान कार्य नहीं है। And Rupa Goswami says that the true service and friendship is also rare. और फिर भक्तिनाथ वगैरह की सच्ची मित्रता भी बहुत मुश्किल है, कठिन है। So this is to be seen only in very advanced devotees. तो ये जो चीज है बहुत ज्यादा उन्नत भक्तों में ही देखी जाती है। Okay. So now you can read. Okay. तो अब अगला है Now प्रिय you can read the next three because they're all short ones. तो अब ये तीन हम इकट्ठे पढ़ेंगे। प्रिय वस्तु अर्पित करना, कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना और शरणागत होना, शरणापति, ये तीनों एक साथ पढ़ने हैं। माता जी मैं पढ़ूं? हरे कृष्णा। Hare Krishna, yes please. जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय। प्रिय वस्तु अर्पित करना, श्रीमद् भागवतम में, माता जी ये तो मुझे नहीं पढ़ने आएगा जो लिखा हुआ है। उद्धव से कृष्ण कहते हैं, हे मित्र, यदि कोई अपनी सर्वश्रेष्ठ या सर्वाधिक प्रिय वस्तु मुझे अर्पित करता है तो उसे नित्य लाभ मिलेगा। कृष्ण के लिए सारी चेष्टाएं करना। नारद पंचरात्र में एक कथन आता है कि प्रभु की दृष्टि के लिए जीवन के संपूर्ण क्षेत्रों में मनुष्य किस प्रकार कर्म करे। उसमें कहा गया है कि जो व्यक्ति वास्तव में भक्ति में रत है उसे सभी प्रकार के कर्म करने चाहिए, शास्त्रों द्वारा बतलाए गए तथा जीव को उपार्जन के लिए स्वीकृत। दूसरे शब्दों में भक्त न केवल शास्त्र विहीन भक्ति कर्म करे अपितु कृष्णा भावनामृत में रहकर अपने व्यवहारिक जीवन के भी कार्य करे। उदाहरणतः यदि किसी भक्त के पास कोई बड़ा संस्थान या फैक्ट्री हो तो वह अपनी ऐसी भौतिक संपत्ति के लाभ को भगवान की सेवा में अर्पित कर सकता है। शरणागत होना, शरणापति। हरि भक्ति विलास में आत्म समर्पण विषयक में यह कथन प्राप्त होता है, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने आपकी शरण ग्रहण कर ली है, जिसे दृढ़ विश्वास है कि वह आपका है और जो मन वचन तथा शरीर से उसी तरह कार्य करता है, वही दिव्य आनंद का आस्वाद ले सकता है। नरसिंह पुराण में भगवान नरसिंह देव कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे प्रार्थना करता है और मेरी शरण में आ जाता है वह मेरा प्रतिपाल्य हो जाता है और मैं समस्त प्रकार के दुखों से उसे सदा बचाता हूँ। हरे कृष्ण।
Thank you. So, offering a favorite article, there are no extra comments for that. It's also mentioned in the 11th canto by Krishna to Uddhav that part of our sadhana bhakti is to whatever we think is most dear to us, we should offer to Krishna. तो इसका यहाँ तक बता रहे हैं कि 11वें अध्याय में 11वें स्कंद में भगवान उद्धव को बता रहे हैं कि जो चीज हमें अति प्रिय है वो भी भगवान को अर्पित करना एक भक्ति का अंग है. Which is very easy if we then take the result back as prasadam. तो ये बहुत आसान है अगर हम इसका जो फल है उसको प्रसादम के रूप में वापस ना लेने की इच्छा रखें तो. But of course, we shouldn't just take all prasadam for ourselves. If we have offered it to the Lord, then we should also distribute. और सारा प्रसाद हमें अपने लिए नहीं रख लेना चाहिए. अगर हमने भगवान को अर्पित किया है तो जो प्रसाद मिला है वो हम सब में बांटें. So therefore, we have to be a little generous and share what we like ourselves. और फिर हमें थोड़ा सा अच्छा बन के जो भी हमें मिलता है वो हमें सब में बांटना चाहिए. For performing all endeavors for Krishna, it's merely stating that aside from the instructions of sadhana bhakti, other things we do that to maintain our body, we should also do for Krishna's pleasure. तो इसके लिए बता रहे हैं कि साधना भक्ति का अंग है कि जो भी हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं उसके अलावा जो हम अपने शरीर के लिए भी कुछ करते हैं या कोई इच्छा रखते हैं तो वो भी हमें इसी भावना से करनी चाहिए कि हम जो कर रहे हैं उससे कृष्ण को प्रसन्नता होगी. To 52 being a surrendered soul. There's 2 quotes there which are just being repeated. माताजी मुझे एक क्वेश्चन है. Okay, please माताजी ask. जैसे यहाँ पे है भागवतम 11.11.41 कैंटो में जो लिखा है कि जो भी आप मुझे पसंद है वो भगवान को अर्पित करे तो उसका फल मतलब अच्छा मिलेगा. लेकिन मैंने सुना है कि भगवान को ना तो खट्टा पसंद है ना तीखा पसंद है. भगवान को स्वीट डिशेस पसंद है. मतलब अगर वेजिटेबल्स भी या सब्जी भी बनाए तो उसमें मीठा डाल के. तो फिर भगवान के पसंद के हिसाब से नहीं बनाते. हम तो अपना मतलब अपना इंद्रिय तृप्ति के लिए खट्टा चीज जो भगवान के लिए बनाते हैं और वो देते हैं. क्या ये सही है? So you can recite the Bhoga Arati song, and that tells you all of the different types of food that Radharani is cooking for Krishna, and that includes kata food and sour preparations, bitter preparations. But some people say we shouldn't feed chili to Krishna. But if you like Krishna, that means if you like chili too much, it means you're a little bit in the mode of passion. तो इसमें माता जी बता रहे हैं कि इस बात को समझने के लिए आप भोग आरती पढ़ो और उसके अंदर लिखा गया है कि कैसे राधा रानी भगवान के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाती हैं जिसमें खट्टा तीखा कड़वा मीठा सब कुछ होता है और भगवान सब पाते हैं. पर ऐसा कुछ लोग ये भी कहते हैं कि भगवान को मिर्ची भोग नहीं लगानी चाहिए, भगवान तीखा नहीं खाते. तो ऐसा भी है कि अगर आप बहुत ज्यादा मिर्ची लगाते हैं तो आप रजोगुण में हैं, ये दर्शाता है. तो But this ऐसा is कुछ नहीं. but this is a little bit subjective because people have grown up with different environments. They've gotten used to different tastes. तो ये जो है थोड़ी वास्तविकता के हिसाब से चलता है क्योंकि जो लोग हैं वो अलग अलग प्रकार के माहौल में पले बड़े हैं और अलग अलग प्रकार की स्वाद की उनको आदत है तो ये वैसे ही चलता है. What I say is too much spicy
may be perfectly fine according to your taste. So I'm not going to judge you. तो इसलिए माता जी कह रहे हैं कि जो मेरे को बहुत ज्यादा तीखा लग रहा है वो शायद आपके लिए ठीक हो सकता है, तो इसके लिए मैं आपको नहीं आपको देखूंगी कि आपके बारे में कुछ सोचने नहीं लग जाऊंगी कि नहीं आप रजोगुण में हो या कुछ ऐसा। तो हर व्यक्ति का अपना अपना मतलब जैसे वो पले बड़े हैं उसके हिसाब से ये सब चीजें होती है। But it is true that if you're thinking about what Krishna ate, he and Lord Chaitanya, neither of them ate chilies because they were only brought in from the Mediterranean after that. So neither Krishna nor Lord Chaitanya, because they were in India, they never ate chilies or bengans or potatoes or tomatoes. तो ऐसा तो है, देखा जाता है कि महाप्रभु ने कभी आलू या महाप्रभु ने या भगवान ने कभी आलू टमाटर या मिर्ची ऐसी चीजें नहीं खाई। Because they weren't in India, they came from the Mediterranean a couple hundred years later. हाँ, तो क्योंकि ये जो आलू टमाटर मिर्ची ये भारत में नहीं हो गए, ये आए हैं बाहर से, तो फिर ये उस समय नहीं थे, ये कुछ 100 साल पहले ही आए हैं शायद। So some of these Goswami temples in Vrindavan, they don't offer these things to Krishna to Krishna on the altar. They only offer, they consider them as not offerable because they weren't here at that time. तो कई गोस्वामी जो गोस्वामी के मंदिर हैं वृंदावन में, कई जगहों पे आलू टमाटर मिर्ची ऐसी चीजें भोग नहीं लगती हैं, भगवान के भोग में नहीं इस्तेमाल होती, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि ये भोग नहीं लगती भगवान को। I remember we have one godbrother, Siddha Sarup. He liked chilies, but he would cook them separately and not offer them to Krishna because he thought Krishna didn't like them. तो हमारे ये गुरु भाई हैं, तो उनको तीखा और मिर्ची वगैरह बहुत पसंद था, तो वो क्या करते थे, भगवान को भोग बिना मिर्ची का लगाते थे और अलग से वो जैसे हरी मिर्ची या वैसे कुछ तैयार करके वो बिना भोग लगाए खाया करते थे, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था ये तो भगवान को भोग लगता ही नहीं है। Yeah, so he'd cook the loki for Guru Maharaj. It's a nice sabji. And then he would take the skin of the loki and make his own chutney with lots of chili. And he didn't offer it. तो वो गुरु महाराज के लिए लौकी की सब्जी बनाते थे और लौकी की सब्जी अच्छी बनाते थे, और फिर जो लौकी का छिलका होता था उसके साथ हरी मिर्च मिला के उसकी चटनी बना के खाया करते थे। Okay, now we've got okay, being surrendered soul, she's added one more quote from purport to Chaitanya Charitamrita. So being surrendered means that we don't demand anything of Krishna. Krishna likes, he may keep us in a poverty-stricken condition, and the picture example is of Sudama Brahman. Or if he likes, he may give him opulence. A devotee should not be concerned either way. तो जो एक भगवान का भक्त होता है उसको किसी प्रकार की चिंता नहीं होती है और उसे विश्वास होता है कि भगवान मेरे लिए जो करेंगे अच्छा ही करेंगे, जैसे कि यहाँ पे उदाहरण सुदामा ब्राह्मण का दिया जा रहा है कि वो कितने गरीब थे। And then Krishna made him very opulent at the end also. और फिर भगवान ने उनको कितना धनी बना दिया था। But the devotee is simply interested in satisfying the Lord by rendering service. और जो भक्त हैं वो सिर्फ भगवान की सेवा करने में ही संतुष्टि प्राप्त करते हैं। Okay, she's talking about another Sanskrit word called Sharanapati, which I don't know where it comes from. Oh, it says item 52. So, yeah, so she's describing that we had Atmanivedam before, which was surrendering everything to the Lord. And then this item is called Saranapati, being a surrendered soul. And so she's describing what the difference is between these two. तो हमने आत्मनिवेदन भी पढ़ा था और उसके बाद फिर शरणागति पढ़ रहे हैं, शरणापति पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, तो इसके बीच का जो फर्क है वो समझाया गया है। And Rupa Goswami is describing that the first one that we read earlier, Atmanivedam, is very rare because it is difficult to perform. तो जो हमने चौथे नंबर पे आत्मनिवेदन पढ़ा था पहले, रूप गोस्वामी बता रहे हैं कि वो बहुत
कहीं कहीं देखने को मिलता है और वो बहुत मुश्किल है उसे करना, आत्मनिवेदन। But this one, being a surrendered soul, can be a comfortable way of living. तो इसके जैसे कि शरणागत होके एक मतलब कोई व्यक्ति जीता है तो वो एक रहने का आसान तरीका हो सकता है। Okay, more explanation. हरे कृष्ण माता जी, मुझे एक क्वेश्चन है। आई हैव वन क्वेश्चन। Okay. माता जी, वी हैव वन in God brother na, their son, I forget his name, and he was died sometime, maybe 2 years ago. So नीव, Mataji, she's talking about नीव, I think. yes, Neem. So Mataji, my question is Oh, that okay. means his parents are fully shanagat to the God, and that guy Neem is also very dear to the Guru Maharaj and Krishna ji. So this type of things when happen in our means family, then our means मतलब हमारा थोड़ा जो विश्वास होता है ना माता जी, तो उस समय हमें ये देख के थोड़ा डर हमें थोड़ा सा डर फील होता है माता जी। तो उस समय हम अपने आप कैसे मतलब कि अपने आप को कर पाएंगे, हाउ वी कैन मैनेज आवरसेल्फ दैट नो इज द ये भगवान की मर्जी से हुआ है। तो उसमें माता जी थोड़ा सा डर लगता है। So अपना this is yeah. So there's a couple of different aspects here. One is like in the example also of Draupadi. Draupadi was also very dear to the Lord, and yet she suffered so many misfortunes. But yes, in doing so, Krishna used that to show how wonderful, how glorious she was, because she was still surrendered. So from our point of view, it gives us an example of particularly not just her, but the Pandavas as well. They went through so many troubles, and yet they were still fully surrendered to Krishna. It actually makes them more glorious. It shows how glorious they are. And another aspect is that we don't know. I mean, obviously, Neve's parents were very much upset, but we don't know exactly what the relationship of Krishna and Neve was. I mean, it was a personal relationship, and even his father was saying that there was something, he could sense something in Neve. Maybe Neve wanted to go back to Godhead, that we don't know exactly. But he could sense something before that was a little different in his attitude. So perhaps it was his desire also to go back to Krishna. We can't, yeah. तो माता जी यहाँ पे बता रहे हैं कि सवाल था माता जी का कि जैसे आप सबको याद होगा कि लास्ट ईयर हमारे गुरु भाई के एक पुत्र थे नीव, जिनके लिए हमने बहुत प्रार्थना भी करी थी, रोज माला भी हम लोग कर रहे थे कि वो जिस भी दिक्कत में उससे बाहर आ जाए। तो फिर भी लेकिन नीव ने शरीर छोड़ दिया। तो हम लोग भक्ति करते हैं, लेकिन जब जीवन में ऐसी परिस्थितियां आती है तो हमें डर लगता है कि हम क्या कर सकते हैं। तो इसमें माता जी उत्तर में बता रहे हैं कि इसमें हम द्रौपदी का उदाहरण ले सकते हैं, पांडवों का उदाहरण ले सकते हैं कि उनके साथ कितना गलत हुआ, फिर भी वो स्थिर थे, भगवान पे विश्वास था। तो ऐसे हम इस चीज को समझते हैं। हालांकि जो नीव के माता पिता थे, जो कि हमारे गुरु भाई हैं और गुरु बहन हैं, वो बहुत परेशान भी थे, दुखी भी थे, लेकिन फिर भी उनका भगवान में विश्वास था। और ऐसा भगवान इसलिए करते हैं कि उनके भक्तों का और गुणगान हो, मतलब उनके भक्तों का नाम और प्रसिद्ध हो, ऐसा भगवान इसीलिए करते हैं। और जो ओजस्वी प्रभु जी हैं, जो नीव के पिता हैं, वो बता रहे थे कि उन्हें कुछ ऐसा महसूस हुआ था नीव के अंदर कि जैसे वो हमें नहीं पता नीव का भगवान से क्या संबंध था, लेकिन वो कहते हैं कुछ ऐसा महसूस हुआ था। और वो ऐसा समझ पा रहे थे कि जैसे नीव खुद ही वापस जाना चाह रहे थे भगवान के पास। शायद इसीलिए ऐसा हुआ था। तो ये भगवान जो भी परिस्थितियां ऐसी भक्त के जीवन में देते हैं, वो इसलिए देते हैं ताकि उनके भक्तों का और ज्यादा गुणगान हो। ठीक है।
Okay, Mataji. Hare Krishna. Continue, Mataji, please. Continue. Okay. Should we come on the next one, or we have something further to No, discuss? there's something more. She's still trying to describe the difference between Atmanivedanam and Sharanapati. So Atmanivedanam means the full self-surrender, but she's saying this Sharanapati means that we see the Lord as our protector. So a pure devotee like Nanda Maharaj sees Krishna as needing protection. So this Sharanapati is not the same as being a pure devotee, because Sharanapati means we're seeing the Lord as our protector. तो इसके अंदर बता रहे हैं कि आत्मनिवेदन और शरणापति में यह कि शरणापति में हम भगवान को अपने रक्षक के रूप में देखते हैं। तो ये शुद्ध भक्ति का स्तर नहीं होता है और ये थोड़ा सरल होता है आत्मनिवेदनम से। जैसे कि नंद महाराज का बता रहे कि उन्हें हमेशा लगता था कि कृष्ण मेरी रक्षा करेंगे। Okay, now we can read this last one in this chapter, which is about serving trees such as Tulsi. तो अगला भाग है तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। ये पढ़ना है। हरे कृष्णा। प्रभुपाद जी की जय। मैं पढ़ती हूँ माता जी। तुलसी इत्यादि वृक्षों की सेवा करना। स्कंद पुराण में तुलसी वृक्ष की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी वृक्ष को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि वह पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देते हैं। इस वृक्ष के स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे क्लेश तथा रोगों से विमुक्त हो सकता है। इसको नमस्कार करने तथा इस वृक्ष पर जल डालने मात्र से मनुष्य यमराज के दरबार में भेजे जाने वाले भय से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति कभी भी तुलसी का वृक्ष उगाता है, वह निश्चय है भगवान कृष्ण का भक्त बनता है। जब तुलसी दल भक्ति पूर्वक कृष्ण के चरण कमल पर अर्पित किया जाते हैं, तो भगवत प्रेम का पूर्ण विकास होता है। भारत में सारे हिंदू, यहाँ तक कि जो वैष्णव नहीं है, वे भी तुलसी वृक्ष के विशेष सेवा करते हैं। बड़े बड़े शहरों तक में जहाँ तुलसी वृक्ष के रख पाना अत्यंत कठिन है, वहां भी ऐसे लोग मिलते हैं जो बड़े यत्न से इस वृक्ष की सेवा करते हैं। वे इसे सींचते हैं और प्रणाम करते हैं, क्योंकि भक्ति में तुलसी वृक्ष की पूजा का अत्यधिक महत्व है। स्कंद पुराण में तुलसी विषयक एक अन्य कथन मिलता है। तुलसी सभी प्रकार से कल्याणमय है। इसके दर्शन, स्पर्श, स्मरण, बंधन, प्रणाम, श्रवण या इस वृक्ष के लगाने मात्र से सदैव कल्याण होता है। जो कोई उपयुक्त विधियों से तुलसी के संसर्ग में आता है, वह सदैव वैकुंठ लोक में निवास करते हैं। हरे कृष्ण। Okay, thank you. So this worship of Tulsi, Prabhupada likes Tulsi very much, and if we study Prabhupada's writings on he's talked about Tulsi worship in his letters more than anything, and he actually quotes this part of Nectar of Devotion of Bhakti Rasamrita Sindhu in one letter, saying you can see how important it is that we serve Tulsi. प्रभुपाद को तुलसी बहुत प्रिय है और प्रभुपाद बहुत जगह तुलसी के बारे में बताते हैं और अपने पत्रों में भी प्रभुपाद ने सबसे ज्यादा तुलसी पूजा के बारे में बात करी है और भक्ति रसामृत की इस भाग को भी कई जगह प्रभुपाद ने दिखाया है। Now, way back early in our description of these angas, there was an item about giving respect to banyan trees, cows, and brahmanas and tulsi. And this one is about serving tulsi. So we're discussing the difference between these two. तो हमने एक पढ़ा था कि किस प्रकार से हमें बनियन के वृक्ष, बरगद के वृक्ष की या ऐसे उनकी सेवा करनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है तुलसी पूजा के बारे में बताया गया है और इन दोनों में क्या फर्क है इस पे हम चर्चा करेंगे। So the first one, item number 10, was talking about our attitude of respect to these items like banyan trees, tulsi trees, and cows, etc.
तो जो पहले वाला है वो कैसे हमें आदर देना चाहिए पूजनीय वृक्षों को, गायों को, उसके बारे में बताया गया था। Whereas this one is actually talking about us offering service to Tulsi. और ये जो है ये बताया गया कि किस प्रकार से हमें तुलसी की सेवा करनी चाहिए। Talking about offering obeisances, pouring water, etc. और जैसे कि प्रणाम करना, जल अर्पण करना इत्यादि। Okay. So that's the end of this chapter. And I think because the nectar chapter goes on with these 5 important things of devotional service, it's quite an involved chapter. I'm thinking that we should keep that for next time. Yes, because today a little Finish disturbance is at also this there. point. We- Yeah, I think we'll go through the next one next time. And just now, if anyone has any questions, we can carry on with it. तो अभी हम लोग जो अगला अध्याय है वो अगली कक्षा में करें, क्योंकि वो 5 मुख्य अंगों के बारे में बात कर रहा है। और अगर अभी के लिए किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्ण माता जी मैं एक चीज शेयर करना चाहूंगी तुलसी के बारे में। मैं एक लेक्चर में सुन रही थी कुछ डिवोटीज जो मायापुर से सऊदी अरब गए थे जो प्रीचिंग करने के लिए। तो कुछ साल पहले की बात है। तो वहाँ पे बिल्कुल जो मतलब कोई डिवोटी नहीं मिल रहा था, मतलब कैसे प्रीच करे, बिल्कुल अननोन मुस्लिम कंट्री है। तो तो वो लोग बता रहे थे कि हम लोग जो है ऊपर की तरफ देखते थे जब स्ट्रीट से जाते थे, और किसके बालकनी में तुलसी के पौधे हैं तो वो देख के उसके डोर नॉक करते थे कि किसी घर में तुलसी के पौधे हैं तो मतलब ये जरूर इंडिया से बिलोंग्स करते हैं या फिर सनातनी है। तो फिर वहां पे ऐसे प्रीच स्टार्ट किया था, मैंने लेक्चर में सुनी थी माता जी। Should I translate it for you, Mataji? Yeah, I got part of it, but I don't think I got all of it. So she's telling that she heard in one lecture that some devotees from Mayapur went to Saudi Arabia for preaching, and they could not find a way out. So what they used to do was they used to walk on the streets and see upwards in the terrace or maybe balconies of the people out there. And wherever they saw that there is Tulsi kept, they used to go and preach in that house, because they thought they must be Sanatanis or devotees or maybe from India, because they have Tulsi in their balconies or terrace. Okay. Did it work? They obviously came Yes. back alive, so it must have worked. But I mean, Prabhupada here is mentioning that even those who are not Vaishnavas, they still worship the Tulsi. But he says in Hindus, so all the Hindus worship the Tulsi. Even some of them are not Vaishnavas, and some of them are worshipping for different purposes. But the Tulsi is held in very high regard. तो इसमें माता जी बता रहे, प्रभुपाद भी बता रहे कि हिंदू लोग जो हैं वो तुलसी की पूजा जरूर करते हैं, और हर हिंदू के घर में तुलसी होती है, चाहे वो किसी भी भाव से करे या कैसे भी करे, लेकिन तुलसी हर हिंदू के घर में पाई जाती है और उसे ऊंचा दर्जा भी दिया गया है। But Prabhupada, in one letter, Prabhupada stressed that we're not just worshipping Tulsi, we are employing Tulsi in Krishna's service. So we're not just doing Tulsi Puja, we're also offering the leaves to Krishna. तो माता जी बता रहे कि ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ तुलसी की पूजा कर रहे हैं, लेकिन हम तुलसी को कृष्ण की सेवा में भी लगा रहे हैं, हम कृष्ण को अर्पित कर रहे हैं। Anything else? I don't think so. No. Nobody has. Hare I have a Krishna whole- Mataji. Hare Dandavat Krishna. Pranam Mataji. I'm sorry, I just got to join late. I'm sorry for that. Actually, my question is not related to the class really, but something is on my mind. So can I ask you about it? Yeah, you can.
Thank you, Mataji. Just 1 minute. Uh, I just stopped this recording because Yeah. Yes.